So now we are discussing the Lokpal and Lokayukta Act, that was Act of Indian Parliament Anti-Corruption, which seeks to provide the establishment of institution Lokpal inquire into allegation of corruptions. There is including the PM and plus cabinet member and the parliament के जितने भी member है of central government group A for the matter. The bill was tabled in Lok Sabha 2011 and was passed in December. Lokpal bill, it was subsequently tabled Rajya Sabha after marathon debate on May. It was referred to the select committee, and in Rajya Sabha December 2013, after certain amendments earlier bill, the Lokpal was the next day received assent from the President Mukherjee. Okay, so that was a Pranav Mukherjee that time. Pranav Mukherjee. Okay, and here is the act provide establishment of body of the Lokpal of Union Government and Lokayukta State to inquire allegation of corruptions. Territorial extent India है, पास बाय राज्यसभा, पास 17 दिसंबर, डेट याद रखना है 17 दिसंबर 2013 राज्यसभा, एंड पास बाय लोकसभा 18 दिसंबर, assented 1 January and signed by the Pranab Mukherjee and commenced 16 January. Okay, so bill was tabled Lok Sabha, then it was upper house midnight, and consider it was passed in the Rajya Sabha 17 December after certain amendment were made to the earlier bill. So bill has been introduced in the parliament following massive public protest of anti-corruption. Anna Hazare associate the bill was one of the most widely discussed, debated in media and people of India. Hazare's protests were named among the top 10 news stories of now retired Supreme Court Judge Pinaki Chandra Ghosh was appointed as the first Lokpal. So first Lokpal अगर कोई पूछ ले तो नेम क्या था? पिनाकी Chandra Ghosh. That was the first Lokpal, and India of the committee consisting of the Prime Minister Narendra Modi and Chief Justice of Ranjan Gogoi. So CJI was the Ranjan Gogoi on Prime Minister also. So the Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan and eminent jurist of Mukul Rohatgi. The term Lokpal was in 1963. Lakshmimal Singhvi as a member of parliament during the debate, and the Administrative Reform Commission headed by the Morarji Desai submitted the report Problem of Redressal of Citizen Grievances. So this report on the grievances in 1966. In this report, ARC recommended the creation of two special authority of Lokpal and Lokayukta. The word was derived from the Sanskrit Lok and Pala. Maharashtra was the first state to introduce Lokayukta through the Maharashtra Lokayukta Act of 1901. Presently, there are no Lokayukta. Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Jammu Kashmir and Manipur. Lokpal bill was first introduced in the 1968. The version enacted in 2013 and prepared in 2010. The bill is implemented of the Prevention of Corruption 1988, and the act for each state say every state shall establish a body to be known as a Lokpal Lokayukta, if not so established, constituted by the law made by the state legislature to deal with the complaints regarding करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरी. तो यहाँ पे 68 में कोस थी 3 लाख. द फोर्थ लोकसभा डिजॉल्व हो गई, एंड 2 मिलियन के लिए 1971 में रिजोल्यूशन ऑफ फिफ्थ लोकसभा. 1977 में सिक्स लोकसभा डिजॉल्व हुई, देन 85 में द विड्रॉल कर लिया गया. इस तरीके से विड्रॉल होता ही रहा, फिर 15 मिलियन तक आ गया, फिर 12 में गवर्नमेंट वर्जन ने लोकपाल दिया एंड पास बाय द लोकपाल राज्यसभा, एंड देन लोकसभा से पास हुआ 18 दिसंबर 13 को. ड्राफ्ट क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस टू क्रिएट ए ऑम्बड्समैन टास्क विद ट्रैकिंग द पॉलिटिकल करप्शन मिनिस्टर्स एंड एमपी के अगेंस्ट. However, civil society group were not satisfied, so rejected, but it's a toothless body, so Hazare started an indefinite hunger strike, and now there is a corruption in public place, so the Jan Lokpal bill was there, and in the gazette notification on the formation of joint committee was there consisting of the government and civil society. joint draft में हमने प्रणब मुखर्जी एज ए 10 मेंबर थे पहले, फिर पी चिदम्बरम जो थे होम मिनिस्टर, वीरप्पा मोइली, कपिल सिब्बल एज ए कम्युनिकेशन, वीरप्पा मोइली लॉ से रिलेटेड, सलमान जो थे दैट वाज वाटर,
अन्ना हजारे सिविल सोसाइटी, संतोष हेगड़े दैट वाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिटायर्ड जज थे, एंड शांति भूषण दैट वाज द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, एंड प्रशांत भूषण एंड अरविंद केजरीवाल थे, ठीक है। नाउ यहाँ पे 5th ड्राफ्ट आया, एंड नॉर्थ ब्लॉक लास्टेड फॉर 19 minutes. टीम अन्ना presented their version of the bill, and the prime minister, like under the revised proposal, prime minister and leader opposition in the Lok Sabha were replaced with the Rajya Sabha chairman, Lok Sabha speaker. तो पहले क्या होता था कि मॉडिफिकेशन किया गया, इसमें कहा गया कि पीएम और लीडर अपोजिशन की जगह अब क्या होगा, राज्यसभा का चेयरमैन एंड स्पीकर। द मीटिंग वाज इजीली रिकॉर्डेड, द कमिटी क्लेम डिसीजन वुड बी मेड अवेलेबल, एंड एचआरडी मिनिस्टर कमिटी मेंबर कपिल सिब्बल ने बोला कि दैट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मानसून सेशन। सेकेंड ड्राफ्ट आया 2011 में, प्रशांत भूषण ने बोला द मीटिंग वाज मेनली डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ओके, एंड दैट ओके। नाउ थर्ड ड्राफ्ट 2011 में, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो इनको भी इंक्लूड करना है हमें, किसे किसे, सुप्रीम कोर्ट को, कैग को और विजिलेंस को। तो नाउ एक्सेप्शनली कंस्ट्रक्टिव कहा गया इसको, कपिल सिब्बल ने बोला। नाउ अरुणा रॉय थे और हर्ष मंदार वगैरह। फोर्थ ड्राफ्ट 2011 में आ गया था, इसमें 40 बेसिक प्रिंसिपल दिए गए एंटी ग्राफ्ट लोकपाल बिल। फिफ्थ ड्राफ्ट मई में आया, जुडिशरी वुड बी पार्ट ऑफ डिस्कशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट व्यू स्टेट एंड पॉलिटिकल पार्टी वुड बी डिस्कस्ड। सिक्स्थ ड्राफ्ट जो स्ट्रेंथन द डाउट्स अबाउट द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, पुलिस क्रैकडाउन, बाबा रामदेव से रिलेटेड मैटर हुआ था। फिर सेवन्थ ड्राफ्ट आ गया था, ठीक है। अब हमें क्या ध्यान रखना है, कंपोजिशन का ध्यान रखना है। तो कंपोजिशन चेयरपर्सन एंड द 10 मेंबर है, 10 मेंबर्स द चेयरपर्सन टू हैव एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है। 4 मेंबर लीगल बैकग्राउंड से होंगे। टेन्योर 5 ईयर और द 70 ईयर। प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेलेक्ट कमिटी होगी। प्राइम मिनिस्टर कमिटी के होंगे, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, लीडर ऑफ हाउस एंड पीएम इज नॉट ए मेंबर, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ द हाउस अफेयर, लीडर पोजीशन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह सब होंगे। पीएम, लीडर पोजीशन इन द लोकसभा, 2 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल द प्रीवियस चेयरपर्सन लोकपाल एंड मेंबर्स ऑफ द कमिटी एंड prepared the select committee. Qualification जो होगा that was 25 year experience in the public affair, academics, commerce, finance. Once appointed cannot be in MP MLA connected with the political parties. A judicial member has to be either a chief justice of high court or judge of supreme court. Removal complaints against the member are made to the president who may refer to the supreme court who conduct the inquiry. ठीक है, complaints क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। द प्रेसिडेंट में रिमूव द मेंबर ऑन द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑन ग्राउंड बायस, करप्शन, इंसॉल्वेंसी वगैरह होगी। तो ऑल करप्शन केसेस जो होंगे वो अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आएंगे। एमपी, मिनिस्टर्स, ग्रुप ए सबको इसमें लाया गया है। एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन से जिनको फंड प्राप्त हो रहा है, ठीक है, द फंड फ्रॉम द पब्लिक एक्सक्लूड द पीएम, पीएम को इसमें एक्सक्लूड किया गया है, एंड एनी ऑफ द एक्शन ऑफ एमपी एंड एनी ऑफ द एक्शन। तो जो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला एक्ट है इसमें पीएम भी नहीं है और एमपी भी नहीं है, ठीक है। सो ऑफेंस बाय द पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग द, इसमें इंक्लूड किया गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एमपी, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर अंडर द इंडियन पीनल कोड। एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एमपी रेस्पेक्ट ऑफ स्पीच, वोट हाउस, विलफुली गिविंग, टेकिंग बेनिफिट्स फ्रॉम पर्सन, विक्टिमाइजिंग, वेसल ब्लोअर अगर कुछ बोले तो इसमें इंक्लूड कर दिया गया सबको, ठीक है। जुरिडिक्शन में इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, देखो 30 दिन तक इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। इफ देयर इज नो प्राइमा फेसिया मैटर क्लोज, गिवन ए प्राइमा फेसिया केस टू द लोकपाल, इन्वेस्टिगेशन आफ्टर प्रोवाइडिंग मस्ट बी कंप्लेन विद इन द 6 month, 6 month में extension giving, no section shall be required now. When an investigation corruption cases, the CBI work under the Lokpal and Supreme Court and High Court required to permission of 7-member bench होगा यहाँ पे। Investigation whistleblower complaints who are in the danger of victimization. The Lokpal may constitute a prosecution wing headed by directors and there must be complete within a 1 year में हो जाना चाहिए सारा कुछ, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज द मिनिस्टर ऑफ द ऑफेंस ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी एंड द सोसाइटी, हेड ऑफ द ऑफिसर सोसाइटी, लोकपाल रिकमेंड द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एंड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मस्ट टेक एक्शन इन 30 days एंड विद इन द 6 month इसको इन्फॉर्म करना है।
प्रोसीजर जो होगा, द कमिटेंट अथॉरिटी ऑफ द पीएम या मिनिस्टर एंड द लोकपाल राज्यसभा फॉर एमपी, द स्पीकर चेयरपर्सन एंड द टेबल द रिपोर्ट इन द पार्लियामेंट एंड कंप्लीट रिपोर्ट 90 डेज में, ठीक है। सो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आ गया, द लोकपाल शैल अपॉइंट द रिटायर्ड जज ऑफ द civil servant as a judicial officer. A bench of the judicial officer can impose a penalty on the public servants after conducting an inquiry. The decision shall be subject to approval from the higher authority. Prosecution can be initiated against the Prime Minister, Minister, MP, judges and 7-member bench of the Lokpal. If the Lokpal grant permission to investigate or initiate prosecution, no section required to be the authority. पेनल्टी 25,000 से जो भी है 2 लाख रुपए तक, 5 साल के अंतर्गत जेल भी हो सकता है, फाइन भी 2 से 5 साल की जेल। फॉर एनी करप्शन द पेनल्टी शेल बी फॉर द फिक्स मंथ टू लाइफ इम्प्राइजनमेंट। इफ द बेनिफिशियरी फॉर द ऑफेंस इज बिजनेस एंटिटी, ए फाइन ऑफ अप टू द 5 टाइम्स और लॉस कस्ट। सो फॉल्स कंप्लेंट्स होंगी तो फिर लोकपाल में रिजल्ट 3 मंथ इम्प्राइजनमेंट भी हो सकता है एंड फॉल्स कंप्लेंट फाइन हो जाएगी उसके लिए 1 लाख रुपीज़। पेड बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे जो बजट है, लोकपाल शुड नॉट बी लेस देन 0.25% ऑफ टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो नो सेक्शन रिक्वायर्ड फॉर द गवर्नमेंट टू इंक्वायर द केक ऑडिट एंड लोकपाल एंड द पार्लियामेंट्री कमेटी विल इवेल्युएट करते हैं। केक भी ऑडिट करता है, पार्लियामेंट्री कमेटी भी इसको देखती हैं एंड द लोकपाल कैन सर्च द डॉक्यूमेंट को आप 90 डेज़ के अंतर्गत कर लोगे कंप्लीट। फाइल फॉर द कंफर्मिंग द अटैचमेंट विद इन द 30 डेज एंड रिकमेंड द सस्पेंशन ऑफ एक्यूज। द लोकपाल कैन रिसीव द कंप्लेंट्स फ्रॉम द विस्टल ब्लोअर एंड कोई वारंट आ गया हो, कोई प्रॉपर्टी हो, रिकमेंड करा हो किसी ने, सी लोकपाल कैन अप्रूव द इंटरसेप्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द मैसेजेस ट्रांसमिटेड थ्रू द टेलीफोन और इंटरनेट से भी। The government moved its version of bill and the Lokpal in 4 August, the 9th such introduction. The bill was introduced Minister of the State in the Prime Minister office, Narayana Swamy, leader opposition Sushma Swaraj opposed the exclusion and Lokpal Narayana Swamy told the House the Prime Minister Manmohan Singh was in favor of the bringing his office. Now on 27 August, the Lokpal and the Lok Sabha passed the Pranab Mukherjee passed the resolution. So there was a citizen charter and the act was finally noticed by the President of India on the 1 January 14 after getting approved by both the House of Parliament. The Lokpal to the headed by the chairperson who is the head of the Chief Justice of India or being judge of the Supreme Court, an eminent person हो गया. The act also provide for the appointment of other member which shall not be exceed 50% of judicial members, among other than 50% members are the scheduled caste, scheduled tribe एंड ओबीसी से रिलेटेड होंगे। दैट प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डायरेक्ट, मतलब देखो 50% मेंबर तो SC/ST से हैं और जुडिशियल मेंबर है 50%, ठीक है। 1 जनवरी 2014 से फाइनली नोटिफाइड हो गया था और प्रोवाइड कर रहा है कि डायरेक्टर इंक्वायर कर सकते हैं। ग्रुप ABCD हो गया, बिलोंगिंग टू पब्लिक सर्वेंट। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होगा ना, ये मैटर इसको देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जन लोकपाल बिल आया था, तो जन लोकपाल बिल वॉज द सबमिटेड कमिटी बाय द कांग्रेस, प्रवीण सिंह एरोन थे बरेली के। द ड्राफ्ट बिल वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड मेंबर 28 नवंबर। द कमिटी रिकमेंड द कीपिंग जुडिशरी out of Lokpal but even rejected demand. So committee member had unanimously recommend conferring constitutional status to the Lokpal. A draft document did not take a position on the inclusion of PM. Another of team Anna demand for the inclusion of the bureaucracy. So there was a group A, B, C, D and the final meeting 7 December they decided अंडर द एम्बिट ऑफ लोकायुक्ता इनको लाना है, ठीक है, ABCD को। तो यहाँ पे है 31 मेंबर कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 25 MP हैं और 22 पॉलिटिकल पार्टी 6 सीट्स हैं। अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा, चंद्रेश कुमार लोकसभा एंड ये सारे हो गए। इनेक्टमेंट क्या है, लोकपाल बिल वॉज टेबल्ड इन द December 2011 एंड पास द वॉइस वोटिंग एंड द फर्स्ट डे ऑफ द 3-day सेशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी कह सकते हैं इसको। विथ दे प्रोवाइडेड फॉर द मेकिंग द लोकपाल ए कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी वाज अभी तक बन नहीं पाई है, ठीक है। सो गवर्नमेंट विदड्रॉल इट प्रीवियस वर्जन एंड हैड इंट्रोड्यूस न्यूअर वर्जन ऑफ द RJD लीडर लालू प्रसाद अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ, मतलब यहाँ पे काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा बिल आना चाहिए, अभी तक आया नहीं है। फिर विंटर सेशन में काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए, जैसे कि हामिद अंसारी एज ए चेयरपर्सन बने, नारायणा स्वामी इन्होंने भी डिफेंड किया तृणमूल के,
ठीक है। सो बजट सेशन हुआ, फिर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में शांताराम नेक और चतुर्वेदी, शादीलाल बत्रा, ये सब लोग बिल के कॉन्टेक्स्ट में आए थे कि सीवीसी वुड मॉनिटर लोकपाल रेफर इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई, मतलब सीबीआई की रिपोर्ट से सीवीसी को मॉनिटर करना चाहिए। देयर वुड बी प्रोविजन फॉर अटैचिंग प्रॉपर्टी एंड द टाइम फ्रेम फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड अमेंडमेंट वाज प्रपोज्ड would pass the bill so national law would not be forced upon and after the amendment bill introduced। तो उन्होंने कहा कि कोई भी नेशनल लॉ को इन्फोर्स नहीं, फोर्सफुली आपको नहीं लाना है। फिर 253 आर्टिकल है जो कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करता है। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन माइट नॉट बी फिजिबल, तो दैट्स वाई दिस। फिर मानसून सेशन में ये बिल आ गया। तो ये मतलब कंप्लीट हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए लोकपाल का कि क्या था एग्जैक्टली व्हाट वाज द लोकपाल एंड व्हाई इट वाज केम।